promise or break promise. Either you keep your promise or break your promises. आप अपने वायदे पूरा कर सकते हो या फिर वायदे तोड़ सकते हो. Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave me himself for me. परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अभी मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है और जो बाकी जीवन में पूरा मैं जीता हूँ अपने शरीर के अनुसार नहीं लेकिन परमेश्वर में विश्वास के अनुसार मैं जीता हूँ. We need to remind ourselves the reason I took water baptism, I was been crucified with Christ and died with Christ. My old nature has been crucified. I used to get angry. Now I delay in getting angry. It might not go 100%. God can take it away, but at least I'm delaying to get angry. और कारण मैंने पानी का बपतिस्मा इसलिए लिया क्योंकि मैं मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मेरा पहले का स्वभाव मेरा बदल चुका है. पहले मैं बहुत जल्दी में गुस्सा होता था लेकिन अभी मुझे थोड़ा देर से गुस्सा आता है. पूरी रीति से हो सकता है कि गया नहीं होगा लेकिन परमेश्वर उसको निकाल सकते हैं. Amen. Matthew 6:14-15. मत्ती 6 अध्याय 14 और 15 वचन. For if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their transgressions, neither will your Father forgive your transgressions. Period. 6 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा. Forgive and be forgiven. माफ करो और माफी ले लो. Because if you cannot be forgiven if you do not forgive others. आपको तब तक क्षमा नहीं मिल सकती जब तक आप दूसरे को क्षमा नहीं करते हो. Amen. Amen. How I can keep promises towards God? हम अपने परमेश्वर के प्रति अपने वायदे को कैसे पूरा कर सकते हैं. I can keep promise towards God only by loving somebody and forgiving my brother and sister. हम परमेश्वर के प्रति अपने वायदे को दूसरे से प्रेम करके और उस दूसरे को क्षमा करके हम पूरा कर सकते हैं. None of us are perfect. कोई भी परिपूर्ण परिपक्व नहीं है. Nobody is perfect except God. परमेश्वर के अलावा कोई भी परिपूर्ण नहीं है. We all have faults in our life. हम सबके अंदर कमियां हैं हमारे जीवन You में. will never get 100% perfect life partner in your life. आपको कभी भी अपने जीवन में पूरे 100% परिपक्व और परिपूर्ण जीवन साथी That नहीं is why मिलेगा. in the Western countries they don't get married. They stay, they live in, and they live, and they live in, they live, 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 they live in. इसीलिए पश्चिमी Till they get old also. पश्चिमी देशों में इसीलिए वो लोग कुछ थोड़े थोड़े दिनों तक एक व्यक्ति के साथ रहते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर दूसरे के साथ रहते हैं फिर छोड़ देते हैं और ऐसा उनके बहुत बुढ़ापे तक चलता रहता है. Sometimes when they are old, they are very old, and if you ask them, so how many years of you are married? No, I just married recently. और वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं और अगर आप उनको पूछोगे कि आपके शादी को कितने साल हो गए तो वो बोलेंगे कि कुछ ही दिन पहले हमारी शादी हुई. So, because we are not able to forgive. क्योंकि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं. This is what God is telling us to forgive others. और यही परमेश्वर हमको कहता है दूसरों को क्षमा करने के लिए. Amen. And the last scripture, Numbers 23:19. और आखिरी वचन है गिनती का 23 अध्याय. God is not human, 19 वचन. परमेश्वर आदमी नहीं that he should not lie, that he should lie, कि वो झूठ बोले, nor son of man that he should change his mind. और वह आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले. Does he speak and then he not act? Does he promise and not fulfill? क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे. It's only God who can, ultimately, it's only God who gives us grace. He gives us grace. He gives us grace. Grace is very important.
We only are here, we can love somebody only through grace. I cannot boast over it. परमेश्वर ही हमको अनुग्रह देता है और उस अनुग्रह के द्वारा ही हम दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, It is because of me and our marriage is good. और अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ और मेरी वजह से ही हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा है, It's wrong. ये गलत है। We both are equally credited for our marriage. और हमारा रिश्ता अच्छा चलने के लिए उसका श्रेय हम दोनों को जाता है।